Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is Introduction to Visual Basic. Students, as you know that a program is a set of instructions given to the computer to perform a task. To write program, we need programming languages. In your early classes, you have learned to develop programs in a procedure-oriented language such as QBasic. In this chapter, we will learn about a object-oriented language, i.e. Visual Basic. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता। तो अर्लियर क्लास में हमने QBasic के बारे में जाना था, जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं विजुअल बेसिक के बारे में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कही जाती है। What is Visual Basic? Visual Basic is a user-friendly Windows-based programming language popular among beginners. It was developed by Microsoft in May 1991. In Visual Basic, visual refers to the method used to create the graphical user interface GUI. And basic refer to the popularity known basic language used by many programmers to provide a variety of tools to create user-friendly application. Visual Basic VB is object-oriented programming language that supports event handling. In Visual Basic, you need to drag and drop any graphical object anywhere on the form, and you can change its properties by using the properties windows. तो विजुअल बेसिक जो है ये आपका यूज़र फ्रेंडली विंडोज़ माना जाता है, और यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। इसे बिगनर्स भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ विजुअल बेसिक में विजुअल जो होते हैं आपका रेफ़र करता है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, एंड बेसिक जो होते हैं ये आपके बेसिक लैंग्वेज को रेफ़र करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विजुअल बेसिक. Follow the given steps to start Visual Basic 2010 Express. Step 1. Click on Start All Program Microsoft Visual Basic 2010 Express. The start page of Microsoft Visual Basic 2010 Express appears. Step 2. To create your first VB application, you need to click on a New Project. The New Project dialog box will appear. Step 3. Select the Windows Forms Application option and click on OK. इसको स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन और प्रोग्राम पे जाएंगे, एंड देन आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस को। जब आपके सामने पेज जो है अपीयर हो जाएगा, देन आपको क्रिएट करना है आपका फर्स्ट VB एप्लीकेशन। ठीक है, उसके लिए यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन आपको सेलेक्ट करना है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को, और देन आप ओके पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो. Following is the brief description of the various components of the Visual Basic window. Title bar, it indicates the name of the project you are currently working in. Menu bar, it contains the various menus whose options help the user in developing the application. Toolbar, it contains icons that give access to frequently used menu items. These icons act as shortcuts to the options available in the menu bar. Toolbox, it has many tools or controls that will help you while creating your application. Project window, it contains a blank form on which you can draw controls to create a user interface. Form window, it displays the form which we use as a container to design an application. Solution Explorer, it displays a list of forms and other objects that constitute the application in an organized manner. Properties window, properties are attributes that defines the appearance of the object, forms and other controls. This window is used to set the properties of forms and other controls placed on them. तो हम यूज़ करना इसको सीख लेते हैं कि कैसे हम VB को यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें टाइटल बार आता है, जो आपके प्रोजेक्ट के नेम को इंडिकेट करता है। मेन्यू बार में आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन टूल बार आता है जिसमें आपके वेरियस टूल्स अवेलेबल होते हैं। इसमें आपके मेन्यू आइटम्स होते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो।
ये आइकन्स जो होते हैं ये शॉर्टकट्स की तरह वर्क करते हैं। टूल बॉक्स, इसमें आपके काफ़ी सारे टूल्स और कंट्रोल्स होते हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हो तो आप इनकी क्या लेते हो, हेल्प लेते हो। प्रोजेक्ट विंडो जो होता है ये आपका एक ब्लैंक फॉर्म कंटेन करता है, जिसमें आप अपने जो भी आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हो। फॉर्म विंडो ये आपको एक फॉर्म डिस्प्ले करता है, जिसमें आपको इसको कंटेनर की तरह यूज़ करना होता है ताकि आप एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है ये आपके लिस्ट ऑफ फॉर्म्स को डिस्प्ले करता है एंड अदर ऑब्जेक्ट को ये डिस्प्ले करता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन को कंसिस्ट करता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ ये आपकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। Do you know Visual Basic 2017 is the latest version of Visual Basic launched by Microsoft in 2017। तो अब तक का जो लेटेस्ट वर्जन माना गया है विजुअल बेसिक का वो 2017 में इन्वेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। Modes of Visual Basic program. A Visual Basic program has 3 modes. Design mode, it is the mode where you design your application and set the properties of the various objects, form, controls, etc. Run mode, it is the mode where you run and test your applications. Blur mode, when an application generates errors or does not give the desired result, we halt its execution for removing errors. Such a mode is called the break mode. नाउ इसके मोड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है डिज़ाइन मोड। ये आपकी एप्लीकेशन को एक डिज़ाइन देता है, ठीक है, और इसमें आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फॉर्म, कंट्रोल, एक्सेट्रा। रन मोड जो होता है ये आपकी एप्लीकेशन को रन एंड टेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ब्रेक मोड जो होता है ये आपके एप्लीकेशन को जो भी आपके एरर्स होते हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपको कोई डिजायर्ड रिक्वेस्ट नहीं देता। कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल्स ऑफ टूल बॉक्स आर एज follows. Command button, it is used to give commands to the application. When a user clicks on the command button, the programming statement associated with the button get executed. Label, it displays a text that the user cannot modify or interact with. Text box, it is used on form to accept units from a user. We can enter text and numbers in the text box. Checkbox, it is used to give a user a true, false or yes, no kind of options, as it can have only 2 values, 1 when checked and 0 when unchecked. तो यहाँ पे आपके जो कंट्रोल्स है जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है उनके बारे में जान लेते हैं। कमांड बटन जो होता है ये आपके एप्लीकेशन को कमांड देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब यूज़र कमांड बटन पे क्लिक करता है तो आपका जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है वो जिस भी बटन से एसोसिएट करता है वो एग्जीक्यूट करता है। लेबल जो होते हैं ये डिस्प्ले करते हैं एक टेक्स्ट को जो कि यूज़र खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकता और खुद से उनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता। टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं ये फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि आपके इनपुट को फ्रॉम द यूज़र एक्सेप्ट किया जाए। इसमें आप टेक्स्ट को और नंबर्स को एंटर कर सकते हो। चेक बॉक्स जो होता है ये आपके यूज़र को ट्रू और फॉल्स या फिर येस और नो में ये क्या करता है, एक आंसर आपको प्रोवाइड करता है, एक रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी 2 वैल्यूज़ शो होती हैं, 1 होता है आपके चेक्ड के लिए एंड 0 होता है आपके अनचेक्ड के लिए। Some common properties following are the properties that are common to most of the controls and which we frequently change while a Visual Basic application are given below. Property description, name, the name given to a control or form will be used to identify it in the program control. Back color, this property allows you to specify a background color of the control or form. Caption, it is the text that will be seen on a control or on the title bar of a form at runtime. Font, this property is used to set the font size, font style of the text on the control or form. Height holds the height of the form or control in tweets.
visible determines whether the form or control appears or is hidden from the user. Width holds the width of the form or control in tweeps. Tip, a tweep is a unit of measurement equal to 1/20 of a point or 1/1440 of an inch. तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिनसे आपके फ्रीक्वेंटली चेंजेस किए जाते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। जैसे कि प्रॉपर्टी है आपका नेम। नेम जो होता है ये आपके कंट्रोल को दिया जाता है, ठीक है, और या फिर किसी फॉर्म को दिया जाता है जो कि किसी भी प्रोग्राम कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैक कलर जो होता है ये आपके बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करता है। कैप्शन के थ्रू आप टाइटल देते हैं, और फॉन्ट जो होता है ये आपके जो जितने भी आपके लेटर्स है, टेक्स्ट है, उनके फॉन्ट के साइज़ को, उनके स्टाइल को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइट से आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हाइट जो होती है ये आपके कंट्रोल की जाती है ट्वीप्स में। विजिबल, ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो फॉर्म और कंट्रोल है वो किस तरीके से अपीयर होगा या किस तरह से वो हाइड होगा। विड्थ भी जो होती है वो हाइट के साथ ही यहाँ पे चेंज की जाती है आपके फॉर्म में, ट्वीप्स में। अब ट्वीप्स क्या होता है? ट्वीप आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, जिसके यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। नाउ डेवलपिंग अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। There are three main steps to create an application in Visual Basic. Create a form and add controls on it, set the properties, write the codes. ठीक है, तो ये आपके 3 main steps होते हैं जिनको हम एक एक करके जान लेते हैं। Creating a form. When we start a new project in Visual Basic 2010 Express, a blank form appears on the screen. To add more form to our application, either click on the project, add Windows form or select the project, add new item Windows form option on the standard toolbar. फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जो विजुअल बेसिक है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसमें आप ब्लैंक फॉर्म को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। देन आपको ऐड करना है मोर फॉर्म को टू आवर एप्लीकेशन। इसके बाद या तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड विंडो पे जाएंगे, फॉर्म विंडोज़ फॉर्म, या फिर आप सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम विंडोज़ फॉर्म ऑप्शन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। नाउ एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म. Follow the given steps to add a new control to the form. Step 1. Click on a desired control to select it and then drag the pointer on the form to add that control to it. Or you can also double click on the control to add it to your active form and then resize it by dragging from the resizing handles as per your liking. तो यहाँ पे जान लेते हैं कैसे हम फॉर्म्स में कंट्रोल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको डिज़ायर कंट्रोल पे जाना है, क्लिक करना है ताकि वो सेलेक्ट हो सके। देन आपको ड्रैग करना है अपने पॉइंटर को फॉर्म पे टू ऐड द कंट्रोल टू इट, या फिर एक और ऑप्शन है आप डबल क्लिक कर सकते हो कंट्रोल पे ताकि वो ऐड हो सके आपकी एक्टिव फॉर्म के रूप में। उसको आप फिर रीसाइज कर सकते हैं। उसको रीसाइज कैसे करेंगे आप? उसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। Setting control properties. Every control has a certain properties which decide its characteristics and behavior during the runtime. Follow the given steps to set the properties of an object. Step 1. Select the control in the form. Step 2. Click on the required property to select it in the properties window. Step 3. A cursor appears in the value box. Change a property by deleting the existing values and typing the new desired value. कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ को सेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, हर एक कंट्रोल जो होता है उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड द रन टाइम। तो आपको सबसे पहले कंट्रोल को सेलेक्ट करना है इन द फॉर्म। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है ताकि आप उसको सेलेक्ट कर सको इन द प्रॉपर्टीज़ विंडो। एक कर्सर अपीयर होगा आपके वैल्यू बॉक्स में, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं बाय डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड आप न्यू डिजायर्ड वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। Remember, if the properties window is not visible, you can make it appear by right click on the object and click on properties. अगर आपकी प्रॉपर्टीज विंडो विजिबल नहीं हो रही है आपको तो आप इसको विजिबल कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। इसको कैसे? राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे और फिर आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे।
Writing codes for an event. The final step in developing the application is to write the event code for the various buttons. The steps to do this are as follow. Step 1, select the command button control from the toolbox panel and place it on the form. Step 2, click on the command button, changes its text property to show in properties window. Step 3, now double click on the show to open the code window. Step 4, in the code window, write the statement in between the pre-written lines of the codes as shown in the adjacent figures. The syntax to assign a value to the property of an object is label name dot text equal to value. For example, label 1 dot text equal to double quote welcome to Visual Basic 2010 double quote. When you click on the object names as show, it will display double quote welcome to Visual Basic 2010 as shown in figure. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम किसी भी कोड को राइट करते हैं किसी भी इवेंट के लिए। तो जो आपका फाइनल स्टेप होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने का, वो उसका इवेंट कोड राइट करना ही होता है फॉर वेरियस बटन। यहाँ पे सबसे पहले आप कमांड बटन को सिलेक्ट करेंगे, देन आप प्लेस करेंगे इसको फॉर्म में। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन कमांड बटन, देन आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे टू शो इन प्रॉपर्टीज़ विंडो। इसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द शो टू ओपन द कोड विंडो। देन इन कोड विंडो आप राइट करेंगे स्टेटमेंट इन बिटवीन द प्री रिटन लाइन्स ऑफ कोड्स एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो आपका जो सिंटेक्स है किसी भी वैल्यू को असाइन करने का किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए, वो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। There are 3 ways to run a Visual Basic project. Press F5 on the keyboard or select the Start Debugging option under the Debug section in menu bar .or. Click on the Start Debugging F5 button on the standard toolbar. Let us create an application to add first name and last name and display the output as shown in the figure. Start new project, add 3 labels, 3 text boxes and 1 command button in the blank form. Change the properties of control as given in the following table. Label 1 text first name, label 2 text second name, text box 1 text empty, text box 2 text empty, text box 3 text empty, button 1 text full name. Now write a statement for the click event, double click on the command button, the code window will open. Write the code as shown in the code window. Press F5 to run the application. You will see the form on the screen. Enter 2 numbers and click on the full name button. अब हम जान लेते हैं कैसे आप विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जो ये एग्जीक्यूशन ये 3 स्टेप्स से यहाँ पे किया जाता है। आपको सबसे पहले प्रेस करना है F5 को ऑन द कीबोर्ड, या फिर आप सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट डीबगिंग ऑप्शन को, जो कि आपको डीबग सेक्शन में नज़र आ जाएगा मेन्यू में, या फिर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप स्टार्ट डीबगिंग क्लिक करेंगे और आप F5 बटन प्रेस करेंगे ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करना जान लेते हैं। टू ऐड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड डिस्प्ले द आउटपुट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को, देन आप ऐड करेंगे 3 लेबल्स को, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को एंड 1 कमांड को, जो कि आपके ब्लैंक फॉर्म में आप फिल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल बताया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई कि कैसे आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे लेबल 1 है, आप यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे फर्स्ट नेम, लेबल 2 में आप टेक्स्ट करेंगे सेकंड नेम। इस तरीके से आप इन जो रिक्वायर्ड आपके ऑप्शंस हैं, जो आपकी फील्ड है, इनको आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप स्टेटमेंट को राइट करेंगे एंड देन आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द कमांड बटन। जो आपके कोड विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कोड भी लिखेंगे जो आपको कोड विंडो में दिखाए गए थे। इसके बाद आप F5 प्रेस करेंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रन कर सके। फिर यहाँ पे आप फॉर्म देखेंगे इन द स्क्रीन एंड आप 2 नंबर्स को एंटर करेंगे ताकि आप यहाँ पे फुल नेम बटन पे क्लिक कर सके। सेविंग अ विजुअल बेसिक फॉर्म। Follow the given steps to save a Visual Basic form. Step 1, click on File menu. Step 2, select Save Form /.vb as option. The Save File as box dialog box will appear.
Step 3, enter the name for the form in file name box. Step 4, click on the save button. अब यहाँ पे हम बेसिक फॉर्म, जो विजुअल की बेसिक फॉर्म है, इसको हम सेव करना सीख लेते हैं. आपको अगेन फाइल फॉर्म पे जाना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, देन आपको सेव पे जाना है. ठीक है, देन आपको सेव फाइल को सेव करना है अपना, उसको एक नाम दे करके. जब आप नाम एंटर कर लेंगे तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है. नाउ क्लोजिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट. Follow the given steps to close a VB project. Step 1, click on the file menu. Step 2, select close project. The close project dialog box appears asking do you want to save or discard changes to the current project. Click on save button. Step 3, the save project dialog box appears. If you want to assign a new name to the project, click on name text box and type a name. Step 4, now click on the save button. The project will be saved and closed. विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट को अब क्लोज करना सीख लेते हैं. इसके लिए आप अगेन फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन आप सिलेक्ट करेंगे क्लोज प्रोजेक्ट को. एक क्लोज प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आपने कुछ चेंजेस जो यहाँ पे किए उनको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं. तो आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे. सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं न्यू नेम टू द प्रोजेक्ट. तो आप नेम पे क्लिक करेंगे, नेम टेक्स्ट बॉक्स पे आप नेम टाइप करेंगे एंड देन आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा एंड वो क्लोज हो जाएगा. रिमेंबर, व्हेन वी सेव अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज सेव्ड विद अ .vbp extension and all the forms in it are saved with a .frm extension. तो आपके जो विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं जब वो सेव्ड होते हैं तो वो एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं जिनको .vbp कहते हैं. और जितने भी आपके फॉर्म्स होते हैं जब आप उनको सेव करते हो तो वो भी एक एक्सटेंशन के साथ ही सेव होते हैं जिनको .frm कहते हैं. Opening an existing Visual Basic project. Follow the given steps to open an existing project. Step 1, click on File, open. The Open Project dialog box appears. Step 2, select the project. Step 3, click on the Open button and the selected project will open. Tips: you can exit from Visual Basic by either clicking at the exit button of the file menu or by clicking at the close button on the title bar of the Visual Basic application window. अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग विजुअल बेसिक रिपोर्ट को या प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आपको सिंपली फाइल पे जाना है, देन आप ओपन पे जाएंगे. ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है जो आपने सेव किया था एंड देन आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. फिर आप अगर उससे एग्जिट होना चाहते हैं विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट से तो आप जो एग्जिट बटन होता है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अपने फाइल मेन्यू में या फिर आप क्लोज बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जो आपको टाइटल बार में नज़र आता है. आप विजुअल बेसिक से आप एग्जिट हो जाएंगे. लेट अस रिवाइंड. विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by the Microsoft Corporation USA. You can use it to build a window-based application. There are 3 modes in a Visual Basic program: design mode, run mode, break mode. A form is an interface through which the user interacts with the application. To create interface of the application, controls are drawn on a form and their properties are set from the properties window. A label is used to display the text that is not to be changed by user during runtime. Command button is used to give commands to the application. The program code for an event is written in the code window which opens when we double click on a control. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.